بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ ابھی تک 3 چیزیں پڑھ چکے ہیں: توحید، رسالت، آخرت. آج آپ لوگ پڑھیں گے فرشتوں پر ایمان. فرشتے، وہ 5 چیزیں تھیں نا اس میں بھائی. جو پہلی آیت لکھی تھی میں نے شروع میں، اس میں جو چیز تھی، سب سے پہلے توحید، رسالت، آخرت، اس کے بعد فرشتوں پر ایمان، اس کے بعد کتابوں پر ایمان. آج پڑھیں گے ہم فرشتوں پر ایمان. کیا مطلب ہے اس کا؟ فرشتوں پر ایمان سے کیا مطلب ہے؟ جو پلیز کوئی کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہے وہ اپنا مائک بند رکھیں. جو کچھ جواب دینا چاہ رہا ہے وہ اپنا مائک کھولیں، صرف باقی لوگ اپنے مائک بند رکھیں. جی، فرشتوں پر ایمان سے کیا مطلب ہے؟ کسی کو کچھ نہیں پتا؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں اور اچھا، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو انسان کی عبادت میں معمور ہیں. کچھ فرشتے منکر نکیر ہیں. کچھ اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں. اوکے. تو یہ تو فرشتے ہیں، ان پہ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ جی، ان پہ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ فرشتے ہیں، مطلب اللہ کی یہ بھی ایک مخلوق ہے، اس پر یقین رکھنا. تو یہ فرشتوں پر ایمان ہی ہوگا. ٹھیک، بہتر. کوئی اور کچھ بتانا چاہے گا اس میں؟ جی، کوئی اور کچھ اضافہ کرنا چاہے گا؟ اینجلس پر ایمان، بلیف ان اینجلس، فرشتوں پر ایمان. ٹھیک ہے، ابھی تک جس نے جو بتایا ہے. قرآن میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے ملائکہ، جمع ہے، مطلب فرشتے. فرشتے ایک پوشیدہ، مطلب چھپے ہوئے ہیں، انویزیبل ہیں، جنہیں ہم اپنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. مطلب اس ورلڈ میں ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم سے مطلب عام انسان. پوشیدہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی ایک مخلوق ہے. وہ بھی کریشن ہے، وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہ بھی ایک مخلوق ہے. کریشن، مخلوق، خالق، اس میں بڑا کنفیوژن رہتا ہے اکثر لوگوں کو. تو فرشتے بھی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی کریشن ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے. ان میں ربوبیت اور الوہیت کی کوئی خصوصیت موجود نہیں ہوتی ہے. ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ الوہیت کا مطلب کیا ہے؟ امید ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا. کوئی بتائے ربوبیت مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ پڑھایا تھا، ربوبیت اور الوہیت. جی، کسی کو نہیں پتا ربوبیت کیا ہوتا ہے؟ ربوبیت یعنی رب ہونا، مالک، پیدا کرنے ٹھیک ہے، والا. اور اوکے. الوہیت کا الوہیت مطلب الہ، ایک جس کی عبادت کی جائے. ایک دم صحیح. تو فرشتوں کے اندر ایسی کوئی صفت اور صفات نہیں پائی جاتی ہے کہ ان کے اندر کوئی ربوبیت ہے، وہ کوئی مالک ہوں، خالق ہوں، رازق ہوں. ان کے اندر اس طرح کی کوئی صفت نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. نہ ان کے اندر کوئی ربوبیت ہے، نہ الوہیت ہے، نہ ان کے اندر یہ چیز ہے کہ ان کی عبادت کی جائے. وہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کیونکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. تو مخلوق کی عبادت کرے، یہ بہت غلط چیز ہے. عبادت صرف اور صرف خالق، مالک، کریٹر، جو ہمارا بنانے والا ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی. مائک بند رکھیں پلیز، مجھے بار بار کہنا پڑتا ہے، یہ چیز صحیح نہیں لگتی. آج چوتھی کلاس ہے، ایٹ لیسٹ اس ٹائم آپ لوگوں کو یہ شعور ہو جانا چاہیے کہ جب کلاس میں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہو تو اپنا مائک بند رکھیں، سارے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو فرشتوں کے اندر ربوبیت الوہیت کی کوئی خصوصیت موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے. وہ ہماری طرح مٹی سے نہیں بنے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نور سے ان کو بنایا ہے. اور وہ تمام اپنے احکامات پوری طرح بجا لاتے ہیں. ان کو کچھ حکم دیے جاتے ہیں، کچھ احکامات دیے جاتے ہیں، کچھ ڈیوٹیز ہیں ان کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
उनको कुछ ड्यूटी दी हैं, वो उन कामों को, उन ड्यूटीज को बजा लाते हैं, खूब अच्छे से उनको अंजाम देते हैं और उन्हें नाफिज करने की कुदरत और कुव्वत अता फरमाई है। फरिश्तों को खुद अपने आप में इनबिल्ट ये नहीं है कि वो अपने हिसाब से, अपनी मनमानी से दुनिया में तमाम काम करते हैं, जिन जिन कामों पर जो जो मामूर किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने हिसाब से सारे काम करते हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने उनके अंदर वो कुदरत डाली है। मिसाल के तौर पे आग, आग का काम जलाना है, तो आग अपने आप में कोई चीज नहीं है, आग में इनबिल्ट अपने आप में वो चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डाली है कि आग जलाने का काम करेगी। और ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आग जलाने का काम करे। इब्राहिम इस्लाम को जब आग में डाला गया था तो आग ने नहीं जलाया था, इसका मतलब अम्र रब्बी उसमें नहीं था। अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म उस आग को ये हुआ कि ये आग ठंडी हो जाए, तो आग ठंडी हो गई। तो हर चीज में जो चीज इंसान का काम आसान करती है उसमें अम्र रब्बी है। अम्र रब्बी का मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म उसमें अंदर मौजूद होता है। छुरी काटने का काम करती है। अब कोई इंसान ये कहे कि मैं किसी गर्दन पे छुरी चलाऊं, छुरी नहीं काटेगी, काटेगी भाई, छुरी काटेगी। काटेगी इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला का अम्र रब्बी उस छुरी के अंदर है कि छुरी काटने का काम करती है। बंदूक की गोली है, बुलेट किसी को मारते हैं तो इंसान उससे मरेगा, उस चीज को अम्र रब्बी है कि इससे वो चीज होगी जो जिस काम के लिए बनाई गई है। तो उसी तरह फरिश्तों को वो कुदरत और वो ताकत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है। जो काम उसको करना है, बारिश बरसाना है, तो बारिश बरसाने पर ड्यूटी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्तों की लगाई है, इसलिए वो बारिश करते हैं। और वो ताकत, वो कुदरत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन फरिश्तों को दी है, अपने आप फरिश्ते ये काम नहीं करते हैं। कुरान में आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलहु मन फिस समावाति वल अर्द वमन इंदहु ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही वला यस्तहसिरून युसब्बिहून अल-लैला वन-नहारा ला यफ्तुरूना। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 19-20। तर्जमा, और इसी का है जो कोई या जो कुछ आसमानों और जमीन में है, जो इसके हाँ है, उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते। फरिश्तों के ताल्लुक से कही जा रही है। तो फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो वो तकब्बुर नहीं करते हैं, ना वो थकते हैं जिस ड्यूटी पर वो लगाई गई है। जिस तरह इंसान थक कर चकनाचूर हो जाता है, आराम की जरूरत होती है, तो फरिश्ते चूंकि रूह से पैदा हुए हैं, फरिश्ते चूंकि लाइट से, और फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रूह से पैदा किए हैं, तो उनको कोई थकावट नहीं होती है। रूह नहीं, सॉरी, नूर से पैदा किए हैं, तो उनको कोई थकावट नहीं होती, वो इंसान की तरह थकते नहीं हैं। ये चीज उनके अंदर सबसे खास है, वो थकते नहीं हैं। रात और दिन तस्बीह करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में, तस्बीह में लगे रहते हैं। फरिश्तों की तादाद तो किसी को मालूम नहीं है, वो तो लातादाद हैं, उनको कोई काउंट नहीं कर सकता। अल्लाह ताला के सिवा कोई इस बात को नहीं जानता कि कितने फरिश्ते मौजूद हैं। एक हदीस जो अक्सर हमारे सामने सुनाई जाती है, या हदीस वो पढ़ी जाती है अक्सर, जिसमें हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु एक किस्सा जिसमें मेराज का जिक्र है, उस वाली हदीस में कुछ चीज बताई है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान पर बैतुल मामूर पर पहुंचे, बैतुल मामूर एक अल्लाह ताला के यहाँ एक जगह का नाम है, पहुंचे तो देखा कि उसमें हर रोज 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं, और जो उसमें एक बार नमाज पढ़कर चला जाता है, दोबारा उसमें लौटकर नहीं आता है, यानी फिर कभी उसको वापसी की नौबत नहीं आती है। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से 3207, सही मुस्लिम में 164 नंबर हदीस है। तो इससे ये बात पता चलती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के पास गए थे, मेराज का जो सफर है पूरा, मेराज के सफर के बारे में पता है सब लोगों को? असरा मेराज। जी सर। जी सर, जिसमें अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत दिखाते हैं, फिर उसके बाद जहन्नम दिखाते हैं। ठीक, तो जब ये वो वाली हदीस है जिसमें जिक्र है, तो उस टाइम पे जो जगह है बैतुल मामूर, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त में 70,000 फरिश्तों को नमाज पढ़ते हुए देखा है। और हदीस में ये जिक्र है कि जब एक बार कोई फरिश्ता उसमें नमाज पढ़ लेता, उसके बाद में उसको नौबत ही नहीं आती थी, या उसका नंबर ही नहीं आता है उस जगह पर नमाज पढ़ने का। तो ये चंद बातें थी फरिश्तों के ताल्लुक से। फरिश्तों पर ईमान लाना, इसके ये 4 उमूर पर मुश्तमिल है, मतलब 4 पॉइंट्स में हम इसे काउंट कर सकते हैं। ईमान लाने का मतलब क्या है फरिश्तों पर? नंबर 1 है
فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا. فرشتے ایگزسٹ کرتے ہیں اس دنیا میں, فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا. فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا. کہ فرشتے ایگزسٹ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ فرشتے نہیں ہیں. کچھ لوگوں کا یہ ماننا بھی ہے کہ فرشتے نہیں ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وہ بہت بڑے لوگ بھی ہیں. کوئی جانتا ہے کوئی بڑے مسلمانوں میں بہت بڑا عالم دین ہو اور اس نے اس بات کا انکار کیا ہو کہ فرشتے موجود نہیں ہیں؟ جی کسی کو پتا ہے؟ نہیں شاید سے سید احمد. ایک دم صحیح. ان کے جو پھر باقی جو چیلے رہے, اسٹوڈنٹس رہے, کچھ ان لوگوں نے بھی اس چیز کا انکار کیا تھا. ان کا ماننا یہ ہے کہ جو چیز انویزیبل ہے, انویزیبل ورلڈ میں ہے, جسے ہم دیکھ نہیں سکتے, جس کو ہم آبزرو نہیں کر سکتے, وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. حالانکہ وہ انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پہ بہت بڑی کتاب بھی لکھی ہے. لیکن جب کوئی انسان زیادہ کسی قوم کی, کسی فکر کی, کسی تھوٹ کا زیادہ غلام ہو جاتا ہے تو اس کی یہی حالت ہو جاتی ہے. انگریزوں سے وہ بے حد متاثر تھے, ان کی فکر سے, ان کی سائنس سے, ان کے تھوٹ سے, اس لیے وہ یہ غلطی کر بیٹھے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو معاملہ کرے وہ اللہ تعالیٰ جانے. بہرحال انہوں نے یہ کہا تھا کہ فرشتے ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں, اور بھی کئی چیزوں کا انکار کیا ہے. مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا تو آگ جلانے کا کام کرتی ہے. اب وہ اس بات کو بھول گئے تھے کہ آگ میں امر ربی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک صاف آیت ہے قرآن میں کہ بھئی آگ سے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا, تو آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی. وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں. تو کئی ایسی جو چیزیں ہیں جو نبیوں کے تعلق سے, جن کو کہتے ہیں میریکلز, تو میریکلز پہ وہ بلیف نہیں رکھتے. سر سید احمد خان. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو یقین میں ان کو سمجھ میں نہیں آئی, اور اس لیے انہوں نے ان چیزوں کا انکار کر دیا, حالانکہ صاف آیت موجود ہیں. تو بہرحال ہر انسان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں. تو فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا, ان کی تو دنیا بے حد اتنی دلیلیں ہیں ہمارے سامنے. قرآن صاف کہتا ہے, حدیث صاف کہتی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں یہ سارے کام ایسے ہی تو اپنے آپ نہیں ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی نظم ہے فرشتوں کے تعلق سے. تو جو رسالت میں جو چیز میں نے گنوائی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اتنا سچا پکا آدمی, جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں کیا, جن کی باتوں میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے, وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھائی فرشتے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب کہہ رہی ہے فرشتے موجود ہیں, وہ یہ کام کرتی ہیں. تو عقل یہ بات کہتی ہے کہ فرشتوں کے وجود کا ہمیں ماننا چاہیے اور اس پہ ایمان رکھنا چاہیے, اور ایمان لانا چاہیے. واقعی میں فرشتے ہوتے ہیں. کبھی کبھی خود انسان کے ساتھ بھی یہ گھٹنا گھٹ جاتی ہے. پوائنٹ نمبر 2, جن فرشتوں کے نام ہمیں معلوم ہیں ان پر. جی سر, آپ ان دونوں لائنز کو ریڈ کر کے بتا سکتے ہیں ایک بار؟ یہ لکھا ہوا ہے فرشتوں پر ایمان, بلیف ان اینجلس. فرشتوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا. فرشتے اینجلس ایگزسٹ کرتے ہیں, اس بات پر ایمان رکھنا, یقین رکھنا کہ ہاں فرشتے ایگزسٹ کرتے ہیں. جن چیزوں کی, جن کا کچھ کلاس چھوٹ گئی ہو, بعد میں آئی ہوں, تو وہ یوٹیوب پہ شروع کے 10 منٹ دیکھ سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2, جن فرشتوں کے نام ہمیں ایکچولی مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی ہے, تو اس لیے ٹھیک ہے, مجھے اس کو ریڈ کرنا نہیں آتا ہے. اس سے زیادہ میں بول رہا ہوں. فرشتوں کے وجود پر ایمان, belief in the existence of angels. آپ اس کو اپنے الفاظوں میں, آپ ہندی جانتی ہیں ہندی میں لکھ لیجیے, انگلش جانتی ہیں انگلش میں لکھ لیجیے, اردو جانتی ہیں اردو میں لکھ لیجیے, جو بھی زبان آپ جانتے ہیں اس میں لکھ سکتے ہیں. جن فرشتوں کے نام ہمیں معلوم ہیں یا پھر جن کے نام ہمیں معلوم نہیں ہیں, ان پر بھی ایمان لانا, ان پر بھی ایمان رکھنا کہ ہاں یہ فرشتے بھی موجود ہیں. یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے. پوائنٹ نمبر 3 نوٹ کرتے رہیں آپ, 3-4 پوائنٹ ہی ہیں, زیادہ نہیں ہیں. فرشتوں کی جن صفات کا ہمیں علم ہے, جن ایٹریبیوٹس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ فرشتوں کے اندر یہ موجود ہیں, ان پر ایمان لانا. جیسے میں نے بتایا تھا کہ کسی کے اندر یہ ایٹریبیوٹس موجود ہے کہ یہ کام کرتا ہے بارش برسانے کا, یہ روح قبض کرنے کا کام کرتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی وحی لانے کا کام کرتا ہے. تو ان کے اندر یہ ایٹریبیوٹس اور یہ صفات ہیں. تو جن صفات کا ہمیں علم ہے ان پر ایمان لانا کہ ہاں یہ فرشتے یقیناً یہ کام کرتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
میں نے ان کے اندر کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں مطلب جو ہمیں میریکل لگتی ہیں. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اصل شکل و صورت میں دیکھا ہے. اس کے 600 پر تھے, مطلب پر ونگز 600 پر تھے, اور انہوں نے پورے افق یا آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا, یعنی پوری فضا میں چھائے ہوئے تھے. مسند احمد حدیث نمبر 460, 412, 407 اور 07, مسند احمد جلد نمبر 1 میں. تو یہ کچھ ایسی جو ہمیں میریکل لگتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے فرشتوں کے تعلق سے, تو ان باتوں پر بھی ایمان رکھنا. کبھی فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, یہ بات یاد رکھیے گا آپ, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سارا کام کرتے ہیں فرشتے, اپنے آپ ان کو کسی بات کی کوئی اجازت نہیں ہے. کبھی فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانی شکل میں آتے ہیں, جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تو آئے تھے ہی. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کا پورا قصہ قرآن میں موجود ہے, ان کے پاس بھی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجے تھے. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان تشریف فرما تھے, اور ایک ایسے شخص کی شکل میں آئے تھے, مطلب جبرائیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے, وہ ایک ایسے شخص کی شکل میں آئے تھے کہ ان کے کپڑے انتہا سفید اور سر کے بال غیر معمولی طور پر سیاہ تھے, کالے تھے. ان پر کوئی سفر کے آثار موجود نہیں تھا کہ کوئی مسافر جیسے ہو جاتا ہے, گردآلود ہو جاتا ہے, گندا دکھ رہا ہے, منہ بھی نہیں دھلا ہوا ہے, دھول جمی ہوئی ہے چہرے پہ. اس ٹائم چونکہ گھوڑے پہ سفر کرتے تھے, اس طرح کی حالت رہتی تھی. صحابہ میں سے کوئی بھی انہیں نہیں پہچانتا تھا, اور اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا کر بیٹھ گئے. بہت معروف حدیث ہے, آپ لوگوں نے اکثر سنی ہوگی. تو اپنی رانوں پر ہاتھ رکھا, اپنی جانب پر ہاتھ رکھ کر وہ فرشتے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بولے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 باتوں کے بارے میں پوچھا, اسلام, ایمان, احسان, 4 باتوں کے بارے میں, احسان اور قیامت کی گھڑی کب آئے گی, ان کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کون ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں, اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں یا پھر ہمیں ہمارا دین سکھانے آئے تھے. صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث اور بھی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. تو انسانی شکل میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے. اسی طرح فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں بھیجا تھا, حضرت لوط علیہ السلام ان کے پاس بھی انسانی شکل میں بھیجا تھا. تو یہ بہت سارے ایسے ایگزامپلس ہیں ہمارے سامنے کہ فرشتوں کو اس بات کا حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ انسانی شکل میں جا کر انسانوں کے پاس اس کا حال چال پوچھنا یا کوئی اور کام کروانا, یہ اللہ تعالیٰ کا پورا نظام ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر 5, فرشتوں کے ان اعمال پر ایمان لانا. سیکنڈ پوائنٹ ریپیٹ کر دیجیے. سیکنڈ پوائنٹ ہے جن فرشتوں کے نام ہمیں معلوم ہیں ان پر ایمان رکھنا, اور جن کے نام معلوم نہیں ہیں ان پر بھی ایمان رکھنا, چاہے ہمیں ان کے نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو, تو ہمیں ان پر ایمان رکھنا. پوائنٹ نمبر 5, فرشتوں کے ان اعمال پر ایمان لانا جو ہمیں معلوم ہیں. اعمال پر یہ کیا کیا کام کرتے ہیں, ان کا کیا پریکٹیکل ورک ہے, تو ہمیں چاہے وہ باتیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو, ہمیں ان پر ایمان لانا, اس بات کا یقین رکھنا کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. مثلا اللہ عز و جل کی تسبیح کرنا, وہ فرشتے تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, دن رات مسلسل بغیر تھکے اور اکتا ہٹ کے اس کی عبادت کرنا وغیرہ. بعض فرشتے مخصوص اعمال کے لیے مقرر ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی حدیث میں یا پھر
जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी क्या है, कोई जानता है? अल्लाह ताला के पैगामात और उसकी किताबें अल्लाह के रसूलों तक पहुंचाती थी। ठीक है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी ये थी, अल्लाह ताला की वही पहुंचाने पर मामूर हैं और अल्लाह ताला ने अपनी वही के साथ उन्हें अपने नबियों और रसूलों के पास भेजा है। नंबर 2 है मीकाइल। मीकाइल का काम क्या है? मखलूक को रोजी पहुंचाना और बारिश बरसाने की जिम्मे है उनका काम। ठीक है, उनके जिम्मे बारिश बरसाना और नबातात या फिर जमादात जो भी जमीन से निकलते हैं उनको पहुंचाना, रिज्क पहुंचाना, एक ही बात है। इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनका क्या काम है? क़यामत की मंसूबी सही बताइए, जो बोल नहीं रहे उनमें से कोई बताए। तमाम लोग पार्टिसिपेट करें, थोड़ी हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाथ को चलाएं आगे, अपने माइक को जो म्यूट है उसको अनम्यूट करें, बोलें। सॉरी सर, वो हजरत किसने इसराफिल इस्लाम का मैंने सुना जहाँ तक वो कयामत का सूर फूकेंगे। सही, क़यामत की घड़ी में मखलूक को दोबारा जिंदा किए जाने के वक्त सूर फूकेंगे, उसी काम के लिए वो मामूर हैं। मौत के फरिश्ते का क्या नाम है? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। ठीक है, इस बात पर यकीन रखना कि मौत का एक फरिश्ता है जिसका नाम अभी आप लोगों ने सुना है, वो इंसान की रूह कब्ज करता है। आगे मालिक नाम के एक फरिश्ते हैं, उनका नाम जानता है, इसका काम जानता है कोई? जहन्नम के दारोगा है वो, मुहाफिज। ठीक है, तो मालिक एक फरिश्ते का नाम है, वो जहन्नम के दरोगा हैं, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड हैं। और आगे हैं एक फरिश्ते ये भी हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला तय करता है जिनीन पर। जिनीन जानते हैं ना? जिनीन जब माँ के पेट में छोटा बच्चा होता है, 4 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का लगभग, उसको जिनीन कहा जाता है अक्सर साइंस की ज़बान में। तो जिनीन पर एक फरिश्ता मामूर किया जाता है, भेजा जाता है अल्लाह ताला की तरफ से। उससे मुराद ये है कि फरिश्ते हैं जो 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 शिकम मादर है, माँ के पेट में जिनीन जो छोटा बच्चा होता है 4 महीने का, उस पर मामूर है। चुनांचा जब इंसान माँ के रहम में 4 माह की मुद्दत पूरी कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके पास एक फरिश्ता भेजता है जो उसकी मौत बदबख्त या फिर उसकी सादत बदबख्ती या उसकी सादत मंदी होने का अहाता तहरीर में लाता है, मतलब उसकी किस्मत उसको पहुंचा देता है या फिर उसके किस्मत के बारे में उसकी खबर देता है। एक फरिश्ता इस पर भी मामूर कर रखा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। बनी आदम के अमाल की हिफाजत पर मामूर फरिश्ते, 2 फरिश्ते हमेशा हमारे साथ मौजूद रहते हैं। हर शख्स के अमाल की हिफाजत सबको लिख रहे होते हैं। उन्हें लिखने के लिए दूसरे 2 फरिश्ते मुकर्रर हैं, जिनमें से एक इंसान के दाएं जानिब, दूसरा इंसान के बाएं जानिब रहता है। इन फरिश्तों का क्या नाम है? किरामन कातिबिन। बिल्कुल, कुरान में अक्सर पढ़ते होंगे आप वो आयत। एक और, मुर्दों से सवाल करने पर मामूर फरिश्ते, मुर्दों से भी कुछ फरिश्ते जो सवाल करेंगे। जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं जो इनसे उसके रब, उसके दीन और उसके नबी की बाबत सवाल करते हैं। इन फरिश्तों का क्या नाम है? ठीक है, बहुत सही। तो ये फरिश्तों के ताल्लुक से चंद बातें थी जो आप तक पहुंचाई हैं मैंने। फरिश्तों पर ईमान लाने का मतलब ये है उनको उनके अमल, उनके सिफात के साथ वैसे की वैसे ही ईमान रखना कि फरिश्ते एग्जिस्ट करते हैं। उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ कुदरत, कुछ ताकत दी है ताकि वो अल्लाह ताला की ड्यूटीज सही तरीके से अंजाम दें। फरिश्तों के ताल्लुक से कुछ सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं। सर, कयामत की टाइम सुर फूकने वाले का नाम क्या होता है?
ये 3rd नंबर पे लिखा हुआ है शायद, इसराफील वही है। जी, कोई और कंफ्यूजन तो नहीं है? जहन्नुम के दरोगा का नेम? असल में नाम ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही बता दिए थे, मालिक नाम है उनका, नाम ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट इस बात का बिलीफ रखना, ईमान रखना कि ये फरिश्ते ये काम करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला अपना काम इन फरिश्तों के जरिए से कराता है, इस बात का यकीन रखना। हमेशा फरिश्ते हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे गुनाह, हमारा नेकी, तमाम चीज़ों को नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इसलिए हमें हर वक्त मोहतात रहने की ज़रूरत है। हम गलती से भी अपनी ज़बान से कोई ऐसी बात ना निकालें, कोई अमल ऐसा ना करें, धक्के में, छुपे में, बाहर, भीतर, क्लास में, क्लास के बाहर, माँ बाप के साथ, माँ बाप से बाहर, फैमिली में, फैमिली से बाहर। हर वक्त जब हम इस बात का यकीन रख रहे हैं कि फरिश्ते हमारे साथ मौजूद हैं, तो कैसे, और जो हर वक्त लिख रहे हैं, किरामन कातिबीन हैं, वो इसी काम पर मामूर किए गए हैं, हर वक्त हमारे साथ लगे हुए हैं, तो हम कैसे इस बात की हिम्मत कर सकते हैं कि हम कोई गुनाह करें, अल्लाह ताला की खिलाफ वर्जी करें और कोई बगावत करें अल्लाह ताला से, दीन के खिलाफ काम करें। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम हर वक्त अल्लाह ताला की अहकामात को बजा लाएं। इसीलिए जो बात कही जाती है, खौफ खुदा की जो बात कही जाती है, मुसलमानों के अंदर तो इनबिल्ट ये चीज़ मौजूद है। दुनिया में कोई पुलिस हो, फौज हो, आर्मी हो, ना हो, कोई हो या ना हो, हर वक्त मुसलमान इस बात पर एहतियाती बरतता है कि हमारे साथ दो फरिश्ते मौजूद हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें देख रहा है, इकरामन कातिबीन, अल्लाह ताला के हुक्म से हमारे तमाम अमाल को लिख रहे हैं। तो हम कभी भी कोई गुनाह ना करें, कोई कत्ल नहीं करें, जिना ना करें, कुछ और गलत काम ना करें। तो हर वक्त इंसान मोहतात रहे अपने आप को लेकर और दूसरों को भी इस गुनाह से बचा कर रखे कि वो कोई भी गलत काम ना करे, क्योंकि हर वक्त फरिश्ते लिखने को तैयार बैठे हैं। सर हेलो, जी 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 जी। वो चौथा पॉइंट क्या था जो 5 बातें बताए थे, वो चौथा वाला? चौथा पॉइंट में कुछ तफसील आ गई थी, हदीस उसमें बता दी थी असल में, इसलिए वो लंबा लग गया होगा आप लोगों को। चौथा पॉइंट था जिसमें फरिश्तों की जिन सिफात पर हमें अमल, असल में जो 5वां पॉइंट है वही चौथा पॉइंट है, 5वां पॉइंट है ही नहीं शायद। अच्छा जो अच्छा, हाँ 5वां पॉइंट है वही चौथा पॉइंट है। मैं असल में नोट्स बनाते टाइम चौथा पॉइंट छूट गया था, शायद 5वां लिख दिया था। आप लोग, मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए अपने नोट्स बनाता हूँ इतने सारे, तब जाके मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों के इनसे ज़्यादा नोट्स होने चाहिए। तो डेली नोट्स होते हैं मेरे इतने सारे, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है आप लोग भी नोट्स बनाएं। अगला पॉइंट है किताबों पर ईमान। किताबों पर ईमान से क्या मतलब है? अल्लाह ताला ने जो चारों किताब नाजिल की उस अच्छा, पे ईमान लाना। जो नाम लेके पूछना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर, जी, सर फरिश्तों की डेथ नहीं होती कभी? फरिश्ते पैदा भी नहीं होते, नूर से पैदा किए हैं, तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से ही, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, वो एक दूसरे वर्ल्ड में रहते हैं, हमें उसका इल्म नहीं है। हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं इसमें जो जो मखलूक हैं और जिसे हम देख सकते हैं उनके बारे में जानते हैं हम सिर्फ। ओके तो सर, मेरा एक क्वेश्चन था, क्या एलियंस होते हैं? नहीं, ये सब उल्टी सीधी बातें हैं, हमें नहीं पता। मतलब कुरान के हिसाब से अगर हम कुरान को सामने रखते हुए कहें कि एलियंस हैं या नहीं हैं, अब वो साइंस भी उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है। वो सिर्फ कुछ फिल्में हैं जो बना दी हैं कि वहाँ पर ये है, वो है, ऐसे ऐसे वो लोग रहते हैं, ऐसी ऐसी मखलूक है। इस तरह की मखलूक के बारे में हमें कोई इल्म नहीं दिया गया है। मतलब हमारा जो इल्म का मिंबा है, असल जो बुनियाद है, कुरान है, कुरान में इस तरह की कोई जिक्र नहीं है। हो सकता है, वल्लाहु आलम, लेकिन कोई फिक्स खबर नहीं है। जो चीज़ दिखाई जाती है ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती है, जो मूवीज, हॉलीवुड मूवीज के जरिए से हमें दिखाई जाती है। सर मेरा भी क्वेश्चन था। जी, सर कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता। मिसाल के तौर पे जैसे किसी की जान बचाने के लिए
इस हाँ तरह का सही है, कोई झूठ बोलते हैं हाँ सही तो बात है। तो वो हमारे वो गलत काम में नहीं जाता है, झूठ में नहीं जाता है। नहीं, असल में दीन इस्लाम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इस माने में बहुत ज्यादा है कि इंसान की जान का एहतराम इस्लाम ज्यादा करता है। मिसाल के तौर पे किसी इंसान की गर्दन पे तलवार रख दी और काफिर कोई कह रहा है कि तुम कलमा पढ़ना छोड़ दो और वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी, तो उसके लिए इस बात की इजाजत है, वो चाहे तो उस टाइम दिल से नहीं, मतलब ऐसी जबान से जो वो चीज कहलवा रहा है वो चीज कह दे, या फिर जी वो अपने ईमान पे और पुख्ता है और वो कहे कि नहीं तुम मेरी गर्दन के अब मेरे 4 पीस कर दो, मैं तब भी जो जिस कलमे पर मैं हूँ उसी पर जिंदा रहूंगा। तो इस तरह की दोनों सहाबियों के हमारे सामने मिसाल हैं, दोनों सही हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा है कि वो भी सही है, वो भी सही है। तो इंसान की जान की एहतराम करता है इस्लाम, दीन इस्लाम में इस बात की बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। अब ये नहीं है कि कोई इंसान अपनी जान दे दे, हालांकि कुछ लोग जो होते हैं अल्लाह ताला के बहुत करीब, वो इस चीज़ को समझते हैं। मिसाल के तौर पे मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, बहुत बड़े मुसन्निफ जिन्होंने पूरी इस्लामिक मूवमेंट खड़ी करी। उनको जेल में डाल दिया गया था, उनसे कहा गया था कि तुम माफ़ी मांग लो। उन्होंने एक किताब लिखी थी कादियानियों के ऊपर, जो कादियानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में दूसरा अपना नबी बना लिया अहमद नाम से, और कहने लगे कि ये भी नबी हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। उन्होंने उस पर ख़त्म नबूवत पे किताब लिखी और कादियानियों की धज्जियाँ उड़ाई उसमें। तो उस टाइम में उनको अरेस्ट कर लिया था, जेल में ले जाया गया, उनसे कहा गया था कि तुम इस बात से माफ़ी मांग लो। मौलाना मौदूदी क्यों माफ़ी मांगे? उन्होंने जो बात कही थी सच कही थी। तो उन्होंने कहा तुम मुझे फांसी पे चढ़ा दो, इससे अच्छी कोई बात मेरे लिए नहीं होगी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे शहादत नसीब होगी। तो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, तो फिर उसकी सज़ा को कम कर दिया था। फिर 6-7 साल में वापस मौलाना मौदूदी जेल से बाहर निकाल लिए गए थे। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने जो बड़ा काम अंजाम दिया है, उनसे कहा जाता है कि तुमने जो काम किया है इससे तुम माफ़ी मांग लो, तुमने जो हुकूमत के खिलाफ बात कही है तुम इससे माफ़ी मांग लो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तो जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं वो कहते हैं कि हमने जो बात की सही कही है, हम उससे माफ़ी नहीं मांगेंगे। अब अल्लाह ताला के हाथ में है मौत और जिंदगी। सर किताबों जी सर मैं पूछ रही हूँ कि जैसे किसी का रिश्ता टूट रहा हो और हम्म, उसके लिए झूठ बोलना सही है? जी जी इसमें भी सही है, किसी का रिश्ता बचाना, किसी की जान हाँ बचाना। जी। अब ये नहीं है कि अपना रिश्ता बचाने के लिए इंसान डेली झूठ बोले, ये नहीं, ये वो किसी चीज नहीं है। दूसरे रिश्ता हाँ बचाने के हाँ लिए। हाँ हाँ, वो चीज दुरुस्त है, उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है। अब ये नहीं कि इंसान अपना रिश्ता मैं जिंदा रखूं तो अपने माँ बाप से झूठ बोल रहे हैं डेली कि हमारा रिश्ता बना रहे, हमारा रिश्ता बना रहे, इस तरह की इजाजत नहीं है। वो तो जी वो सर, रिश्ता बहुत जैसे से मियाँ लोग बीवी का रिश्ता। सर बहुत से लोग बोलते हैं पढ़े लिखे सच बोलते हैं, पढ़े लिखे ही झूठ बोलते हैं। मतलब झूठ बोलना जायज है रिश्ता बचाने के लिए। हाँ, तो सामने वाला कहता है झूठ भी पढ़े ही बोलते हैं, सच भी पढ़े ही बोलते हैं। तो उसकी नौयत देखे ना, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है कि एक इंसान, एक मर्द और एक औरत का जो 10 सालों से उनका रिश्ता चल रहा था, अगर झूठ बोल जी के उनका रिश्ता जुड़ा रहे तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। जी तो इसमें अब कोई ये इल्जाम लगाए कि पढ़े लिखे ही झूठ बोलते हैं, पढ़े लिखे ही सच बोलते हैं, ये बात तो दुरुस्त नहीं है। आप कॉन्टेक्स्ट देखें ना, किस कॉन्टेक्स्ट में वो इंसान ये बात कह रहा है। तो इसमें जी ये नहीं कह सकते कि भाई पढ़े लिखे ही झूठ बोलते हैं, पढ़े लिखे ही सच बोलते हैं, उसकी बात गलत है। तो कॉन्टेक्स्ट देखिए, किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। क्या दिन भर पढ़े लिखे झूठ बोलता है? जी। वो तो जिस जगह पर इजाजत दी है उसी जगह पर सिर्फ पॉसिबल हो पाएगा। किताबों पर ईमान से क्या मतलब है, आप ही बताएं। किताबों पर ईमान से क्या मतलब है, अदीबा आप बताएं। जी अदीबा, जी किताबों पर ईमान से क्या मतलब है? जी जो जो चार आसमानी किताबों की होने पे हमें यकीन करना चाहिए। कौन कौन सी किताब नाजिल हुई हैं? तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान शरीफ। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। तो इन पर ईमान से आगे कोई और कुछ बताएगा, इन पे ईमान रखने का क्या मतलब है?
سر جو بھی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے. لائک اپنی طرف سے کچھ مطلب کچھ بھی اپنی طرف سے رولس نہیں بنانا چاہیے, کوئی چینج نہیں کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. کتب کتاب کی جمع ہے. کتاب یا کتب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو, مکتوبہ بھی جسے بولتے ہیں, مکتوب لکھی ہوئی چیز. کتبہ یکتبو جو عربک جانتے ہیں, تو یہ لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں, لکھی ہوئی چیز کو. یہاں کتب سے مراد ہے کتابیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے رسولوں پر نازل فرمایا ہے. مخلوق کی ہدایت کے لیے رسولوں پر نازل فرمایا ہے. ان کے ذریعے وہ دنیا اور آخرت کی سعادت سے بہراور ہو سکتے ہیں. دنیا اور آخرت کی سعادت, دنیا اور آخرت میں وہ اپنے آپ کو صحیح سلامت رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے حساب سے. کتابوں پر ایمان 4 امور پر مشتمل ہے. پوائنٹ نمبر 1, اس بات پر ایمان کے یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی ہیں اور برحق ہیں. یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں اور برحق ہیں. یہ نہیں ہے کہ کتابیں کسی نے گھڑ کے لا دی, جس طرح دوسرے لوگ الزام لگاتے ہیں. ریسنٹلی مجھے یاد نہیں ہے کسی کا کچھ میسج آیا تھا, انہوں نے اس میں آخری سوال تھا اس میں جو سیکنڈ والا کوئز تھا, ہو از دا فاؤنڈر آف اسلام. اسلام کے فاؤنڈر کون ہے؟ کون ہے اسلام کے فاؤنڈر؟ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جو نہیں چیز سر, لکھی ہوئی آپ ہے, کا یہ والا کویشچن غلط تھا. مطلب کوئز 2 کا سیکنڈ کویشچن جو آپ نے دکھا تھا, وہ از دا فاؤنڈر آف اسلام. تو سر اللہ تو کریٹر ہیں اسلام کے, فاؤنڈر تھوڑی نا ہے. جی سر, مجھے بھی پوچھنا ہے ایک. اوکے آگے. اللہ نے تو کریٹ کیا ہے اسلام کو. اللہ از ناٹ ٹھیک دا ہے. فاؤنڈر, اللہ از اے کریٹر آئی گیس. کریٹ کسے کہتے ہیں؟ کریٹ مطلب اللہ نے اسلام کو بنایا ہے. اللہ فاؤنڈر نے کا مطلب کیا کریٹ ہوتا ہے؟ کیا فاؤنڈ ہے. مطلب فاؤنڈر از لائک جیسے ہم نے کسی چیز کو ڈھونڈا ہے, یا جسی چیز کو ہم نے ریکگنائز یا آبزرو کر کے اس کو ہماری پہچان دے دی کہ رائٹ یہ ہم نے مطلب ہم نے اس کو ریکگنائز کیا ہے یا ہم نے اس کو فاؤنڈ کیا ہے, تو وہ اس کا فاؤنڈر ہو گیا. کریٹر از مثال کے لائک کہ طور ہم پہ نے اس چیز کو کریٹ کیا ہے. تو اس کا مطلب دین اسلام کریشن ہے یا پھر قرآن کریشن ہے؟ مخلوق ہے کیا قرآن؟ نہیں, مخلوق نہیں ہے. آبجیکٹ کی بات نہیں کہہ رہے ہیں آپ نے. اس کویشچن کے اندر ایک سمپل کویشچن ہے کہ وہ از دا فاؤنڈر آف اسلام. تو اسلام تو کریشن ہے, ایک کریٹ کیا ہے اللہ نے, تو کریٹ کیا ہے اسلام کو. یہ اصل میں ایک فلسفیانہ لمبی بحث ہے. اصل میں اس میں ہم لوگوں کو جو چیز کلیئر کرنی تھی وہ کویشچن ڈال دیا تھا, آپ اس کے بارے میں زیادہ ٹینشن نہ لیجیے. اصل میں اس میں جو چیز بتانی تھی وہ یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے فاؤنڈر نہیں ہیں. اصل مقصد یہ بتانا تھا. اب اس میں اللہ آپشن میں ڈال دیا تھا, وہ اس لیے کہ تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فاؤنڈر نہ مانا جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر فاؤنڈر مان لیا تو وہ دوسرے مذاہب کی طرح وہ بھی ایک معاذ اللہ من گھڑنت مذہب ہو جائے گا. فلسفیانہ بحث اس میں اس لیے ہو جائے گی کہ قرآن کو بہت سے لوگ مخلوق کہتے ہیں, اس کے اوپر بڑی بڑی جنگیں بھی چھڑی ہیں. تو بہرحال اس سوال کو یہیں پر ختم کریے. فاؤنڈر آپ کا اگر ماننا یہ ہے کہ اللہ فاؤنڈر نہیں ہو سکتے, کریٹر ہیں, تو بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فاؤنڈر نہیں ہیں, دین کے فاؤنڈر بھی نہیں ہیں. اور جیسے کہ بہت سارے مغربی مفکرین نے, مسلمانوں نے بھی, جو لوگ بہکے ہیں, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ بات کتاب پہ ہو رہی ہے. کتاب اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑی ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اصل بتانا یہ ہے کہ ایک یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی, دی 100 کتاب ہے جو, اس کے اوپر ایک میں نے چھوٹی سی کلپ بنائی ہے جس میں ہمارے بہت بڑے عالم دین بھی یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب, ایک کرسچن نے بہت بڑی کتاب لکھی ہے دی 100 کے نام سے, اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر رکھا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لکھتے ہیں تو نیچے آ کے لکھتے ہیں کہ قرآن کو معاذ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے, خود گھڑا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے فاؤنڈر ہیں. تو ایک اتنی بڑی کتاب لکھ رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے عالم دین اس کتاب کی تعریف کر رہے ہیں کہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر رکھا ہے. جو انسان اس کتاب کو پڑھے گا وہ تو یہی مانے گا نا کہ محمد فاؤنڈر ہیں اسلام کے, وہ تو یہی مانے گا نا کہ قرآن آسمانی کتاب نہیں ہے, قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ خود گھڑی ہے. تو اس پوائنٹ کو میں نے کلیئر کیا ہے, آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے گا اس ویڈیو کو, یا میں لنک شیئر کر دوں گا. تو بتانا یہ مقصود یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
के ऊपर किताब नाजिल हुई है, कुरान या फिर जो भी किताब आई है वो अल्लाह के नबियों पर, रसूलों पर वो किताब नाजिल हुई है। पॉइंट नंबर 2, इन आसमानी किताबों पर ईमान जिनके नाम हमें मालूम हैं, मसलन कुरान करीम जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, तौरात जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसको मोसेस कहा जाता है उस पर नाजिल हुई है और अंग्रेजी में तौरा कहा जाता है उसको, इंजील ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई है जिसको गॉस्पेल कहा जाता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है, और ज़बूर जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है। इन सब पर मुफस्सल ईमान लाना फ़र्ज़ है, मुकम्मल ईमान हमें लाना इस पे ज़रूरी है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा जिन सहीफ़ों और किताबों का ज़िक्र, ये कुछ मख्फ़ी चीज़ें हैं, जिन सहीफ़ों और किताबों का ज़िक्र, कुछ अलग वर्ड इस्तेमाल हुए हैं कुरान में, उसको छोड़ दीजिए, अभी हम सिर्फ 4 चीज़ों पर बात करते हैं, जो 4 किताबें हमारे सामने हैं, इन पर ईमान लाना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। कुरान करीम की तस्दीक करना और उनसे जो साबिक़ा किताब या साबिक़ा कुतुब मसावी उनकी तरह जो किताबें हैं, उन ख़बरों और आयात की तस्दीक भी ईमान का जुज़ है, ईमान का हिस्सा है। मिसाल के तौर पे अल्लाह हमारा खालिक है, ये बात जब हम बाइबल पढ़ के देखेंगे तो उसमें भी लिखी हुई है, और अल्लाह ताला हमारा खालिक है, ये बात कुरान में भी है। इसका मतलब ये है कि जो आयत जो वर्स बाइबल में लिखी हुई है वो इधर भी लिखी हुई है कुरान में। इसका मतलब ये है कि वो आयत बाइबल की वो आयत इंजील की सही है, और क्योंकि कुरान उसकी तस्दीक कर रहे हैं इसलिए हम उसको सही मान रहे हैं। इनबिल्ट हम अपने आप में बाइबल की उस आयत को, उस वर्स को हम सही इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि उन 3 किताबों में तहरीफ, अमेंडमेंट, तरमीम उन लोगों ने कर दी है, इसलिए हम उनको इस तरह नहीं मानते जैसे कुरान है कि उनकी तमाम बातें सच्ची हैं। जब नाजिल हुई थी उस टाइम सच्ची थी, लेकिन उनके मानने वालों ने उनमें तहरीफ कर दी है। लेकिन कुरान मजीद में एक भी वर्ड आगे पीछे ऊपर नीचे करने का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ली है। इसलिए कुरान के बारे में कोई ये बात नहीं कह सकता कि कुरान में तरमीम हुई है, माज़अल्लाह। सर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। जी। सर जो सिया लोग होते हैं उनकी नमाज भी डिफरेंट होती है, हाँ, और वो कौन से मतलब कुरान शरीफ को वो फॉलो नहीं करते, वो किस रूल को फॉलो करते हैं? मेरी एक फ्रेंड है, उनका सारा रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत डिफरेंट है। कुरान को फॉलो नहीं करते, ये बात कहाँ लिखी हुई है? या तो नहीं कुरान को मीन्स फॉलो करते हैं। मतलब जैसे वो नमाज वगैरह पढ़ते तो उनकी नमाज भी डिफरेंट होती है। नमाज पढ़ते हैं वो लोग, नियत नहीं मानते, अल्लाह अकबर के एक हाथ छोड़ दिए, तो सही बुखारी में हदीस है, बिना हाथ छोड़े भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो हम लोग असल में हमारे पास जो चीज़ें पहुंची हैं हम उनको ही बरहक मानते हैं। ठीक है, शियाओं के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, मैं नहीं कह रहा शिया 100% सही हैं, लेकिन उनकी नियत बांधने वाला मामला है नमाज में, वो दुरुस्त है। नियत यहाँ पे भी बांध सकते हैं, यहाँ पे भी बांध सकते हैं, छोड़ के भी नमाज पढ़ सकते हैं, सही बुखारी में साफ हदीस है। तो हम इसके ऊपर लड़ाई करते रहते हैं अक्सर, अहले हदीस, हनफी, ये बरेलवी, वो तुमने यहाँ नियत बांध ली, तुमने यहाँ नियत बांध ली, यहाँ नियत बांध ली, तुम्हारी नमाज नहीं, तुम्हारी नमाज नहीं, तुम्हारी नमाज नहीं। इतना काफ़ी है कि इंसान पीछे के हिस्से में नहीं, आगे के हिस्से में नियत बांध रहा है, वो काफ़ी है। और नियत नहीं बांधने की भी सही बुखारी में हदीस है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको हम इतना बड़ा मसला समझते हैं। असल तौहीद है, रिसालत है, आखिरत है, जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं वो असल हैं। छोटी-छोटी चीज़ें हदीसों में उनको छोटी-छोटी, ये सहाबा ने ये अमल किया था, ये सहाबा ने ये अमल किया था, तो इनमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, जुज़वी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला किसी को इसलिए जहन्नम में नहीं फेंक देगा उठा के कि उसने नमाज करते टाइम रफ़े दीन नहीं करी थी, या रफ़े दीन करी थी, रफ़ेल यदैन उसने कर लिया, नहीं किया इसलिए उसको उठा के जहन्नम में डाल दिया। ये जुज़वी चीज़ें हैं छोटी-छोटी, तो इनके ऊपर मैं इन पे ना ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, ना अपने स्टूडेंट्स को इनके ऊपर तवज्जो दिलाने की कोशिश करता हूँ। जुज़वी चीज़ें हैं, आप जिस मकतबा फ़िक्र में मान रहे हैं, आप खुलकर मानिए, आराम से मानिए, दूसरे की मुखालफत मत करिए, उसके लिए भी हुक्म है, आपके लिए भी हुक्म है, सिवाय उन चीज़ों के जिनके ताल्लुक से सही अहादीस मौजूद हैं। तो बहरहाल बात आगे करते हैं। इन किताबों के इन अहकामात पर अमल करना भी ईमान का हिस्सा है, जो मनसूख नहीं हुई हैं। जो बात मैंने बताई थी, अल्लाह ताला खालिक है, बाइबल में लिखा हुआ है, कुरान में भी लिखा हुआ है। ख़्वाह हमें उनके अहकामात की हिकमत का इदराक हो, उसमें क्या हिकमत है, उसमें क्या हिकमत है, हम उस बात को जानते हो या ना जानते हो, ये तो कुरान के ताल्लुक से भी है। हम उसकी हिकमत को जाने ना जाने, हमें अमल करना है। मिसाल के तौर पे औरत को पर्दा करना है, अब वो कहे कि मुझे समझ में नहीं आता है, आपको समझ में आए ना आए, आपने कलमा पढ़ लिया तो आपको ऊपर ये बात फ़र्ज़ है, आप पर्दा करेंगी। मुसलमान है, उसको नज़र नीचे रखनी है मर्द को, अब वो कहे कि मैं अपनी नज़र नीचे क्यों रखूँ, किन-किन चीज़ों से रखूँ, मैं तो ऊपर देखता चलूँगा हमेशा। तो उसको समझ में आए ना आए वो अहकाम, वो उसकी दिमाग का मामला है कि
कि वो उसको समझ नहीं पा रहा है, लेकिन उसके ऊपर फर्ज ये है कि वो अपनी नजर नीचे करके चले, या फिर जो भी अहकामात है। फिर आगे कुरान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मुल कुरान कहा है, उम्मुल किताब कहा है। ये तमाम कुतुब जो और 3 हैं या फिर और जितनी भी आई हैं, उन किताबों की माँ है, उम्मुल किताब। एक और जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल माइदा आयत नंबर 48 में फरमाया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व अंज़लना इलैकल किताबा बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि। और ए रसूल, हमने आपकी तरफ हक के साथ किताब नाजिल फरमाई है जो साबका किताबों की तस्दीक करने वाली है, जो साबका पहले आई हुई किताबों की तस्दीक करती है और उनके मज़ामीन की हिफाजत व निगराहें। उनमें जो जो बात कही गई हैं उनको तभी हम 100% श्योर मानेंगे अगर वो अहकाम या फिर वो मज़ामीन, वो टॉपिक कुरान में हमें मिल रहे हैं। अगर वो कुरान में नहीं मिले हुए हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये 100% अल्लाह ताला की कलाम है। वो शायद तरमीम अमेंडमेंट जो उसमें कर दी है उसकी वजह से वो चीज़ उसमें दाखिल हो गई हो। तो ये चंद बातें थी जो कुरान और किताबों पर ईमान के ताल्लुक से मुझे बतानी थी। सर एक्सक्यूज मी, ये कौन सूरह नंबर क्या है, आयत नंबर? ये लिखा हुआ है सूरह माइदा आयत नंबर 48। उम्मुल किताब भी कहा है एक जगह, मुझे वो आयत याद नहीं आ रही है। टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई सवाल हो तो वो कर लीजिए, उसके बाद में एक और दूसरी चीज है जिस पे मुझे बात करनी है। जो आज 2 चीजें पढ़ाई हैं उस पे अगर कोई सवाल हो तो। जी, कोई सवाल है किसी का? तो ये चीजें समझ में आ गई जो आज पढ़ाई हैं? जी सब लोग चले गए क्या, मौजूद हैं? जी 22 है। देखिए, आप लोग सारे लोग अक्सर तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले हैं, किसी न किसी फील्ड में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों के अंदर इतना शऊर है कि आप दीन को अच्छे से जानें। आप लोगों की एक सबसे अहम जिम्मेदारी बनती है अभी से अपने एक मौजू को खास बनाएं। मिसाल के तौर पे कंपैरेटिव रिलीजन, अभी जैसे 3 किताबों का जिक्र आप लोगों ने पढ़ा, बाइबल एक में ही वो सारी किताबें आ जाएंगी, बाइबल और कुरान। इनका कंपैरेटिव रिलीजन आप में से जो इंटरेस्टेड हैं वो कर सकते हैं। कुरान और साइंस, इन दोनों के दरमियान जो साइंस का स्टूडेंट है वो इंटरेस्ट ले कुरान की आयत को उनको निकाले जो साइंस से रिलेटेड हैं, जैसे वाटर साइकिल है, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, एम्ब्रियोलॉजी, माँ के पेट में बच्चा कैसे पलता है, बोटनी के हैं जो जमातात नबातात जमीन से कैसे निकलते हैं, उन आयत को निकालें। तो इनको अगर अभी से आप छोटी छोटी चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में साथ लेके चलेंगे, जिन चीज़ों की ज़रूरत है उम्मत मुस्लिमा के स्टूडेंट्स ऐसे होने चाहिए जो कुरान में महारत रखते हों, बाइबल में महारत रखते हों, साइंस में महारत रखते हों, बटनी में, जितने भी फलकियात में महारत रखते हों, और वो ये बता सकें जो वही हम पर नाजिल हुई है उसको सामने रखते हुए कि ये चीज़ बरहक है। ऐसा ना हो कि उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आए, ऐसा ना हो कि आज उस चीज़ के ताल्लुक से उसका ये नज़रिया है, कल को कोई और नज़रिया उसको आके फेल कर रहा है कि नहीं नहीं ऐसे ये काम नहीं होता है, ऐसे ये काम होता है। तो एक बुनियाद आप फराहम करेंगे आज के मुसलमानों को, मानने वालों को। तो आप भी इसमें कंट्रीब्यूट करें। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप पढ़ना शुरू करें अभी से, आपकी जो भी उम्र हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आप मैगजीन पढ़ें जो आपको हालात से बाखबर करती हैं। इंग्लिश में एक मैगजीन है ओरा, ई मैगजीन है, मतलब इंटरनेट पे मैगजीन है। आप ओरा खोलेंगे, ओरा ई मैगजीन, इसमें जो मज़ामीन आते हैं पढ़ना शुरू करिए। उसकी ऐप भी आती है, ओरा की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी है, उस पर आपको ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी, उनके रिव्यू मिल जाएंगे। दूसरी है हादिया, ये भी ई मैगजीन है, ये उर्दू में है जिसको उर्दू आती है। नंबर 3 माइलस्टोन, ये इंग्लिश में है। नंबर 4 नुकूश राह,
ये उर्दू में है। नंबर 5 छात्र विमर्श, जो हिंदी पढ़ते हैं, ये उनके लिए है। एक और है कांति, ये भी हिंदी में है। तो अभी से आप लोग कोई ना कोई एक मैगजीन जो इंग्लिश पढ़ते हैं इंग्लिश वाली लगाएं, उर्दू पढ़ते हैं उर्दू वाली लगाएं। ये तो ई मैगजीन है, दोनों फ्री में आपको मिल जाएंगी घर बैठे। ये इनकी हार्ड कॉपी आती है। आप इंग्लिश वाली पढ़ें तो माइलस्टोन लगा लीजिए, उर्दू वाली पढ़े तो नकूशे राह लगा लीजिए, हिंदी वाली पढ़ें तो छात्र विमर्श लगा लीजिए, कांति लगा लीजिए। तो कोई ना कोई मैगजीन जो आपको हालात हाजरा से अपडेट रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है। आप लोग इनमें से कोई ना कोई एक मैगजीन अभी से लगाएं। इनका कोई ज्यादा चार्ज नहीं होता। एक महीने में 10 रुपए कोई चार्ज दे रहा है, एक महीने में कोई 20 रुपए ले रहा है, वो बाई डाक आपके घर पे पहुंच जाएगी। आप खुद भी पढ़ें, अपने बहन भाइयों को भी पढ़ाएं, उससे हालात का आपको पता चलेगा। इनमें बहुत अच्छे थॉट्स भी आते हैं, अभी दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सारी चीजें। इसको मैं मिटा रहा हूँ। मैं आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर जी वो चौथे नंबर पे क्या लिखा हुआ है नाम? 1 2 3 4 नकूशे राह, नकूशे राह उर्दू में है ये। जी नकूशे राह, ये छात्र विमर्श दिल्ली से निकलती है, हिंदी में है। कांति हिंदी में है, दिल्ली से निकलती है। सबका सब्सक्रिप्शन ज्यादा नहीं है। कोई एक साल में 200 रुपए ले रहा है, कोई एक साल में 300 रुपए ले रहा है। इतने रुपए तो हम अपने बच्चों को दे के वैसे ही खर्च कर दे रहे हैं। कम से कम आपके घर में एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव में दुनिया में क्या चल रहा है, क्या थॉट चल रहा है, क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या हालात हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत मजेदार चीजें जो हमें जिंदा रखती हैं और जिंदा कौम रहने की एक सबूत भी है हमारा। तो एटलीस्ट हमें इनमें से कोई ना कोई एक मैगजीन पढ़नी चाहिए। ये सारे नाम नोट कर लिए, मिटा दूं ये? जी सर। तो उम्मीद है आप लोग एक साल में 200 रुपए 100 रुपए 150 रुपए इतना ही लेते हैं, ज्यादा नहीं, इतना खर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, या फिर आपके यहाँ कोई इन सारी चीजों को जानने वाला हो तो उनसे भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और दो कुछ बड़ी हैं, मतलब एक तामीर फिक्र, ये बेंगलोर से निकलती है और इंग्लिश एंड उर्दू दोनों में है। जो उर्दू ठीक ठाक जानते हैं और इंग्लिश ठीक ठाक जानते हैं और कुछ मुताला हो जिसका थोड़ा बहुत दूसरी चीज़ों में, तो वो ये मैगजीन लगवा दीजिए। तामीर फिक्र बेंगलोर से निकलती है, उर्दू में बैक साइड में होता है, फ्रंट में उर्दू में होता है, इधर पीछे की साइड में इंग्लिश में होता है। बहुत मज़ेदार मैगजीन है, मेरी सबसे फेवरेट मैगजीन यही है, तामीर फिक्र। साइंस और कुरान, साइंस ओवरऑल जो साइंस है उस सारी चीज़ों को इसमें दिया जाता है। और दुनिया में कुछ बड़ी रिसर्च जो होती हैं अलग अलग कंट्रीज में, चाहे हमारी कंट्री में हो, उसका भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पार्ट इसमें दिया जाता है। तो बहुत अच्छी है तामीर फिक्र, फिक्र को बनाने वाली मैगजीन। एक तो ये मैगजीन है, जो उर्दू ठीक ठाक जानते हैं वो ये जरूर लगवाएं। इसका भी सब्सक्रिप्शन ज्यादा महंगा नहीं है, 300-400 एक साल के लिए होगा। और एक है जिंदगी नौ, जिंदगी नौ, ये दिल्ली से निकलती है, उर्दू में है। इसकी उर्दू थोड़ी हाई फाई होती है, जो जिसका थोड़ा बहुत अच्छा ठीक ठाक मुताला हो वो ये ज़रूर पढ़ें। जो एटलीस्ट कुछ किताबें मौलाना मौदूदी और कुछ और दूसरे मुफक्किरीन की किताबें पढ़ चुकी हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है जिंदगी नौ। वो ये मैगजीन लगवाएं और अपने आप को इसके हिसाब से अपने आप को बनाने की कोशिश करें। और डेली मुताले में कुरान को तो रखे ही रखें, और साथ के साथ में ये मैगजीन भी ज़रूर रखें। जानते हैं जिंदगी नौ को कौन कितने जानते हैं? जिंदगी नौ के बारे में कोई जानता है आप लोगों में से? आप में से कोई नहीं जानता? जीआईओ में कितनी लड़कियां हैं? जीआईओ में कितनी लड़कियां हैं? यस, जल्दी से बताएं।
एक हैंड रेज कर दीजिए चाहे तो। जीआईओ में कितनी लड़कियां हैं आप लोगों में से? आप नहीं जानती जिंदगी नो क्या है? आप, मुझे पता है आप लोगों में से अभी भी और भी कई सारे हैं। जिस दिन इंट्रोडक्शन था कई सारी लड़कियों ने बताया मैं जीआईओ में हूँ, जीआईओ में हूँ, गर्ल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ। आपको नहीं पता है जिंदगी नो क्या है? सर अभी अभी इसके बारे में मालूमात हुई थी, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं अब इसको पढ़ने की। ठीक है, पढ़िए लिखिए, आपको पता चलेगा। जिंदगी नो मैगजीन दिल्ली से निकलती है, जमात इस्लामी हिंद की है, लेकिन जो इसमें फिक्र और थॉट आती है, जो इसमें मकालात आते हैं, जो इसमें रिसर्च आती है, जो इसमें तहकीक आती है, वो तमाम मकतबाए फिक्र। इसमें ये तमीज़ नहीं की जाती है कि हम उसका मकाला नहीं छपेंगे। जो हालात हाजरा को एड्रेस करे, जो उम्मत को कुछ नई चीज़ दे, तो इस तरह की जो चीज़ें आती हैं उन मकालात को इसमें छापा जाता है। जिसे आजकल इससे बहुत चल रहा है, इसमें इंसान की तख्लीक कैसे हुई, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन, अभी कुछ किस्तों में आ चुका है, लगभग 7-8 किस्त हो चुकी हैं उसकी, अभी तक कंटिन्यू आ ही रहा है। तो बहुत मज़ेदार मैगजीन आती हैं। मैंने किसी उसके लिए नहीं बताया, गर्ज के लिए, लेकिन ये पढ़ने में हमारी ज़िंदगी में आने चाहिए, पढ़ने चाहिए, और बहुत अच्छी फ़िक्र और थॉट इनके अंदर आती है, जो हमें हालात हाजरा से और हमारे लिए नए रास्ते भी खोलती है। तो